So very sweet morning to all of my dear friends and dear students, and welcome to the live class Suraj School Barano. And as you know, this is your English language class. In this class, you are learning how to communicate, how to learn to communicate in English. आप इस क्लास में सीख रहे हैं कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना कैसे सीखें. ओके डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी have some parts of language, okay, and that has been divided in our program. We have divided this language in some of the part like according to the sensibility of students. So now we are discussing about senior program, which is for 9 to 12 class students. We may say it is quite effective, quite impressive in the matter of result for senior class students. So this is senior program, and in this program we have learned some of the program like that. Some of the points we have discussed before it. इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं like how to express the future action, okay, how to show order, request, prohibition, how to show the continuity, how to show the compulsion, how to express ourselves. Understood? So many of the things have been discussed before it, okay, and I hope that there is not any kind of problem regarding these points. If you have, so once again I would like to revise this. Like at first it was about how to show the future action. For future action we have to use will and shall, okay. How do we express? We express by using will and shall, okay. What do we have to express by using will and shall? We express future action like मैं जाऊँगा, I will go, खाऊँगा, will eat, सोऊँगा, will sleep, बोलूँगा, will speak, okay, पढ़ूँगा, will read or study English, okay, हाँ दौड़ूँगा, will run, लिखूँगा, will write, painting बनाऊँगा, will make painting. Understood? So like this we have to use will, shall plus for first one. Understood? Whenever we talk about future action, here question will be made by putting will or shall before subject. Like one more example कि वह जिम जाएगा, he will go to gym. क्वेश्चन कैसे बनेगा? will को सबसे आगे लेके आएंगे, okay. will he go to gym? If we have to communicate with anyone, we have to make question. In that case we have to use will before subject. Will he go to gym? Yes, he will go to gym. नहीं जाएगा, he will not go to gym. That is about first concept. After that we discuss about how to show order and request. Order request के लिए क्या यूज करते हैं? We have two keys that these are do and do not do. Okay, how do we express order और request? क्या होता है? Order is done with strictness. Okay, order होता है strictness और request होती है politeness के साथ. Okay, ऐसा ही refuse भी होता है. जब हम किसी चीज के लिए मना करना हो तो we do not plus do we use. Understood? Like खेलो, play cricket, खेलो, play cricket, okay. Football मत खेलो, do not play football. And if we have to order someone, you play cricket, like this we order with strictness. And if we have to request, then it will be done with politeness. Please, you play cricket, like this. Understood? This is the difference between order and request, okay. After that we discussed about continuity and frequency and progressiveness of an action. Continuity क्या होती है? जो काम चल रहा है. Understood? और continuity what did we use? क्या यूज करते हैं? पर continuity को शो करने के लिए we have some keys like is, am, are plus verb first plus I, am, G. Understood? Like मैं खेल रहा हूँ, I am playing. Okay? वो खेल रहा है, he is playing. हम खेल रहे हैं, we are playing. यानी कि is used with he, she, it. Okay? Am is used with I, are is used with plural sense. I, we, you, they, and plural sense we use are. Like more example I would like to make. Okay, Papa car चला रहे हैं. Papa is, because Papa is singular. In that case we have to use is here. Okay. More example. Mama खाना बना रही है. Mama is making food. Okay. Grandpa newspaper पढ़ रहे हैं. Okay. Grandpa is singular. In that case we have to use is here. Okay. Grandpa is reading newspaper. मैं पढ़ रहा हूँ. I am reading. हम पढ़ रहे हैं. We are reading. So verb first plus ing we have to use it like that. Question कैसे बनाएंगे? Again we have to do the same thing. We have to use these things before subject. Okay. Are you reading? Okay. Is he reading? Understood? In that case we have to make question. समझ आया?
Okay, for making negative sentence we have to use same thing. Yes, I am reading. No, यानी कि negative sentence कैसे बनाएंगे? I am not reading. Understood? More example कि भी हम टूर के लिए जा रहे हैं. ओके, वी आर गोइंग फॉर टूर. क्वेश्चन, आर यू गोइंग फॉर टूर? यस, वी आर गोइंग फॉर टूर. नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर टूर. ओके, question and yes and negative sentence, these have been made. After that we discussed about compulsion, obligation and duty of present. अब इसके लिए हमारे पास क्या की थी? We had two things. We had has और you will say have plus to. Okay, has to और have to we used to show the compulsion, obligation and duty of present. अब compulsion क्या होता है? मजबूरी. फर्स्ट लैंग्वेज की क्या थी हमारी? लाइक करना है, करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल होमवर्क करना है. ओके, सो वी हैव टू यूज हैव टू और हैज टू. अंडरस्टूड? अब दो चीजें हैं तो दोनों के अलग अलग यूज होंगे. हैज टू कहां यूज किया था हमने? वी यूज्ड हैज टू विद ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नेम, सिंगुलर थिंग. अंडरस्टूड? लाइक उसे करना है, इट मींस ही हैज टू. करना क्या होता है? डू. क्या करना है? होमवर्क. ही हैज टू डू homework. This is the sentence. Okay, मुझे करना है, I have to do homework. Understood? Because have, as you know, we use with I, we, you, they and plural sense. In that case we have to use have to. मुझे करना है, I have to do. Okay, उसे करना है, he has to do. Question, has का question कैसे बनाते हैं? We make question with does. Okay, और have का question कैसे बनाते हैं? Do से बनाते हैं. Okay, do you have to do और does he have to do? क्योंकि does के बाद has नहीं आएगा. does के बाद बताया था आप लोगों को क्या आएगा? we have to use does plus have to. does he have to do? Understood? After that we discussed in next class about how to show routine. इसके बाद हमने सीखा था कि routine को कैसे शो करते हैं. It is very important because we keep talking about our routine in everyday routine. हर रोज की जो हमारी जो कार्यशैली होती है उसके दौरान हम रूटीन का डिस्कशन करते हैं. 80% हम रूटीन के बारे में बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, हम ऐसे खेलते हैं. अंडरस्टूड? सो 80% वी यूज अवर रूटीन इन फर्स्ट लैंग्वेज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ 100, 80% रूटीन इज शोन इन एवरीडे इन आवर लैंग्वेज यूज. अंडरस्टूड? सो रूटीन को कैसे शो करते हैं? रूटीन को शो करने के लिए हमारे पास दो कीज हैं. वी यूज ईदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस. अब ये भी दो चीजें हो गई हमारे पास. वर्ब फर्स्ट कहां यूज करेंगे? वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस कहां यूज करेंगे? डियर, अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्ब फर्स्ट इज यूज्ड ओनली एज वी यूज्ड हैव टू. जहां पे हमने हैव टू यूज किया था विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सेंस. और बाकी जो बचे हैं उनके साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस लाइक ही, शी, इट एंड सिंगुलर. Understood? So in that case we use verb first plus s or es. Like let's make one example. और यहाँ पे हमारे रूटीन को शो करने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज की क्या थी? In Hindi we will get some of the clues like ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ. Understood? For example, मैं खेलता हूँ. ता हूँ is coming the end of the sentence in Hindi. It means we are talking about the present routine. Okay? खेलता हूँ, I play. Because we are talking about ता है और sorry ता हूँ it means खुद के बारे में बात कर रहे हैं. खुद के बारे में बात कर रहे हैं आई. और आई के साथ क्या यूज करना है? जस्ट ओनली वर्ब फर्स्ट. आई प्ले. वो खेलता है ही. और ही के साथ क्या यूज करना है? वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस. ही प्लेज. मैं क्या खेलता हूं? आई प्ले क्रिकेट. अंडरस्टूड? और वो खेलता है ही प्लेज क्रिकेट. अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सेम थिंग वी हैव टू यूज डज टू मेक क्वेश्चन. क्या यूज करते हैं बेटा? डज यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए. डज ही प्ले क्रिकेट? यस, ही प्लेज क्रिकेट. और नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. मैं खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट. क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बनेगा जब वर्ब फर्स्ट है तो क्वेश्चन डू से बनेगा. क्योंकि एस और एस तो है नहीं तो हम डू से क्वेश्चन बनाएंगे. डू यू प्ले क्रिकेट? यस, आई प्ले क्रिकेट. नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परफेक्ट. ये परफेक्ट जो लिखा है इसका क्या मतलब है? It means we are talking about an action which is completed before another action in present. कोई काम जो हमने प्रेजेंट में ही किसी दूसरे काम से पहले कंप्लीट किया है.
यानी कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की क्या होगी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट एन एक्शन व्हिच हैज बीन कंप्लीट, यानी कि किया है या फिर कर चुका है या फिर लिया है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल, मैंने होमवर्क कर लिया है और किया है और कर चुका हूं। ऑल दीज थिंग्स क्या दिखाती हैं कि हमारा जो वर्क है दैट इज परफेक्ट, यानी कि कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अंडरस्टूड? अनदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दैट, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है? कि कोई काम जो पूरा हो चुका है। हाउ डू वी शो दैट? अब इसको शो कैसे करते हैं? सेम थिंग, सेम फॉर्मूला will be used here, but I will let you know, I will make you understand how do we use in our daily routine. रूटीन में, यानी कि रूटीन के यूज में हम उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे अपने माइंड में रखेंगे that we have to use this thing. तो सिंपली थिंग वी हैव टू सी फर्स्ट लैंग्वेज की हियर। हमें देखना है कि हिंदी में हम क्या यूज कर रहे हैं और क्या क्लू मिलेगा हमें। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश, यानी कि सेकंड लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा। सेम we have to use formula like that. We have to use to show perfectness has plus verb third form or have plus verb third form. Okay, has plus verb third form or have plus verb third form. Where do we use? When we talk about an action which has been completed in present by before another action, यानी कि कोई काम जो प्रेजेंट में ही किसी दूसरे काम से पहले कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं पॉइंट पे कि हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कहां यूज करते हैं? जस्ट बिफोर फ्यू ऑफ द क्लासेस यू लर्न अबाउट हैज टू एंड हैव टू। उसमें क्या था? यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट हैज, सो इसका मतलब हैज कहां यूज होगा? विद ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर थिंग, सिंगुलर पर्सन। बेटा वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हैज और हैव का डिफरेंस क्या है? हैज यूज होता है विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम एंड सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग। अंडरस्टूड? एक्सेप्ट इट। अब अगर हम हैव की बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ यूज होता है और विद आई, वी, यू, दे। अंडरस्टूड? समझ आया? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जहां हैज टू यूज करते हैं वहां हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, और जहां हैव टू यूज करते हैं वहां हैव प्लस फॉर्म यूज कर सकते हैं। बशर्ते वी मस्ट नो अबाउट द फर्स्ट लैंग्वेज की, हमें आना चाहिए कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज की क्या है, पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ओके, सो लेट्स मेक वन एग्जांपल लाइक इफ इन हिंदी वी टॉक अबाउट दैट कि खा चुका है। चुका है यानी कि सिंगुलर पर्सन, तो इट मींस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म वी हैव टू यूज। खाना क्या होता है? ईट। तो हैज, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ईटन। हैज ईटन। अंडरस्टूड? खेल चुका है, हैज, खेलना क्या होता है? प्ले। थर्ड फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या यूज करेंगे? हैज प्लेड। अंडरस्टूड? सो चुका है, सोना होता है स्लीप। अंडरस्टूड? और सो चुका है हैज स्लीप। मेक कंप्लीट सेंटेंस, वह सो चुका है, ही हैज स्लीप्ड। अंडरस्टूड? बोल चुका है, बोलना क्या होता है? स्पीक। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अंडरस्टूड? ही हैज स्पोकन। चुकी है यानी कि शी के बारे में बात कर रहे हैं, सो हियर आल्सो वी हैव टू यूज हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली। ओके, शी हैज स्पोकन। अंडरस्टूड? राहुल बोल चुका है, ऑब्वियसली सिंगुलर थिंग इज देयर, सो सिंगुलर के लिए फिर से हमें क्या यूज करना है? हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। राहुल हैज स्पोकन। अंडरस्टूड? मोर एग्जांपल कि टीचर क्लास पढ़ा चुका है, इट मींस टीचर सिंगुलर वी आर टॉकिंग अबाउट। सिंगुलर के लिए फिर से हमें क्या यूज करना है? हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। डियर जस्ट ओनली एज मच यू हैव टू सी, यही देखना है। ओके, टीचर हैज, पढ़ाना क्या होता है? टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। टीच, टॉट, टॉट। अंडरस्टूड? सो टीचर हैज टॉट क्या? क्लास पढ़ा चुका है। अगर इसी के साथ अगर हमारे पास टीचर यानी कि टीचर से एक से ज्यादा होते, टीचर्स होते, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, लाइक टीचर के लिए हमने हैज प्लस थर्ड यूज किया है, तो टीचर्स के साथ क्या यूज करेंगे? लाइक टीचर्स ने क्लास पढ़ा ली है, क्लासेस पढ़ा ली है, इट मींस प्लूरल। सो टीचर्स हैव, और थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया टॉट। टीचर्स हैव टॉट क्या? क्लासेस। अब एक क्लास नहीं होती। अंडरस्टूड? ओके, मोर एग्जांपल लाइक दैट कि मैंने पढ़ा ली, आई हैव
टॉट क्लास, ओके, मैंने खाना खा लिया है और खा चुका हूं। इन दैट केस आल्सो लिया है, किया है, चुका है, सो दैट वी हैव टू यूज वर्ब फॉर यानी कि काम पूरा हो चुका है। आई हैव ईटन फूड, ओके, मैंने पेंटिंग बना ली है, ओके, बनाना क्या होता है? मेक, और क्या बनाई है? पेंटिंग, यानी कि हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव, बनाना क्या होता है? मेक, और मेड, मेक के थर्ड फॉर्म क्या है? मेड। आई हैव मेड क्या? पेंटिंग, अंडरस्टूड? हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि एक से ज्यादा हो गए हैं, सो फॉर दैट व्हाट डू यू हैव टू यूज? हैव, ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि हम वी, और वी के साथ क्या यूज करते हैं बेटा? हैव। वी हैव, सॉल्व करना क्या होता है? सेम थिंग, सॉल्व्ड क्या? क्वेश्चन, दिस इज सेंटेंस, वी हैव सॉल्व्ड question, understood? So this is simple sentence. Now we will talk about two more things which we often use in our conversation, okay? वो कौन-कौन से हैं कि how to make question here and how to make negative sentence, okay? बेटा for making question again we have to use same thing, okay? Has or have for the subject. If we talk about simple question, other questions are made with the help of WH family, where the answer is given with reason. Where simple question is there, it means we are talking about simple question, तो यानी कि आंसर जिसका yes और no में होता है, okay? वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? We have to use has or have before subject, okay? What was previous example? अगर हम बात करना चाहें, let's make some more example here, like वह गा चुका है, okay? वह गा चुका है, अंडरस्टूड? सिंगुलर, फॉर दैट व्हाट डू वी हैव टू यूज? और हम नहा चुके हैं, अंडरस्टूड? दैट इज अबाउट प्लूरल, दिस इज अबाउट सिंगुलर। वह गा चुका है यानी कि ही, और ही के साथ सिंपली व्हाट डू वी हैव टू यूज बेटा? वी हैव टू यूज हैज प्लस वर्ब फॉर्म, ओके? ही, गाना क्या होता है? सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग, अंडरस्टूड? क्या क्या गा चुका है? ही, और ही के साथ क्या यूज करते हैं? हैज, ही हैज सिंग, सैंग, संग, ओके? ही हैज संग क्या? व्हाटएवर इज देयर, ओके? ही हैज संग, और यहां हम क्या यूज करेंगे? नहा चुका, नहाना क्या होता है? टेक बाथ, अंडरस्टूड? सो वी के साथ हैव, नहाना क्या होता है? टेक बाथ, सो वी हैव टू यूज क्या? वर्ब फॉर्म। वी हैव टेकन क्या? बाथ। Like this, you can also make some of the sentences if you are not able to understand in one go. अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है, so please you can write down in your notebook and then you try to speak. And the only sentences which you use in your daily routine, जो आप अक्सर अपनी रूटीन में रिपीट करते हो, है बेटर, अच्छा हो कि आप पहले उन्हीं सेंटेंस को राइट करें, क्योंकि आपको पहले सीखना है कि अपनी रूटीन में कैसे यूज करें। अगर आप रूटीन के हैबिचुअल हैं, only in that case you will be able to communicate after the person who is really user of this English language. So I hope this point is clear to you all. As much is enough for today. Rest of the things, as I told you, question and negative sentence will be discussed in next class. Till then, what you have to do? तब तक आपको क्या करना है? Minimum 10 sentences you have to write in your notebook and try to practice. Try to speak. बोलने की कोशिश करना है. If after that any confusion, any doubt is there, please write in comment box. Till then, be connected with these classes. Keep liking, keep subscribing. That's all for today. Have a good day. Thank you. Bye bye.